welcome back to my channel Gitanjali English Academy. Yes, after a very long time I have come back with my new concept based on tenses. So first of all, apologies for the same, but now I'll be in touch with you. So kindly stay connected and kindly visit my channel more and more. So here I go. Today I have thought that I should let you know about the subsidiary action, which is not up exactly the tense, just like the first four tenses: simple present, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. Now we are discussing, and I will be discussing present force action, and then the next action, and then the next action. So I am going to let you know about the subsidiary actions. Subsidiary actions क्या होते हैं? These also follow the tense structures. ये भी tense का ही structure follow करते हैं. But because you don't find them in your grammar books or in any grammatical syllabus, so you don't know what is exactly that. But they also have their own significance, prime significance in our day-to-day language, which today I will help you to know, to discover. So here I go. You can see this is the fifth action, otherwise this is the fifth action in a row, but it is the first subsidiary action as far as the present tense is concerned. Now that title is present force action. Now what is present force action? Present force action is something in which we talk about something you have to do, you are bound to do, you have some kind of compulsion over you to do, to perform, to enact. For example, मुझे बुक पढ़नी ही है किसके लिए? नॉलेज गेन करने के लिए. और मुझे गाना गाना ही है स्टेज पर ट्रॉफी या अवार्ड जीतने के लिए. सिमिलरली मुझे इंग्लिश सीखनी ही है या मेरी कजिन को, मेरे फ्रेंड को, मेरे सच एंड सच नोइंग वन को, रिलेटिव को और एक्वेंटेंस को इंग्लिश सीखनी ही है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए. सो बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ प्रेशर और यू कैन से अ बाउंडेशन ओवर यू और सम काइंड ऑफ कंपल्शन ओवर यू दैट यू हैव टू डू दिस और डू दैट. ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस आपने सुने होंगे, मस्ट हैव लिसन. सो आई एम गोना एक्सप्लेन यू under the title, under the heading of present force action. So subject plus helping verbs. Under helping verbs we will have we have two options, has to or have to, which will be plotted, which will be placed as per the subject. I'll tell you that also. Plus V1. V1 means first form of verb plus object. The remaining portion will come at the end in the form of objects. Now let's suppose if it is he, she, it. If it is he, she, it, or one name or noun, अगर इनमें से कोई एक चीज है etc. so that will come with has to. Okay, but if let's suppose you have to say I, you, we, they, or more than one name, मतलब एक से ज्यादा नाम है या नाउन है, तो आपको क्या पुट करना है? ऑफ कोर्स इट विल बी विद हैव. हैव टू मतलब जहां पे हैज टू नहीं आएगा वहां हैव टू आएगा, और जहां हैव टू नहीं आएगा वहां हैज टू आएगा. सो बेसिकली विद द वन नेम, वन नाउन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, दैट मीन्स ही, शी, इट, और वन नेम लाइक गीतिका, और वन नाउन मीन्स बॉय, गर्ल, ट्रेनर, स्टूडेंट, इस तरह से कुछ भी होगा तो वहां हैज टू आएगा. एंड आई, यू, we, they, more than one name, one noun if it is, so there will be have to. More than one name means Itika and Shrutika, or Divyanshu and Atul. So if these kind of things are there, or two boys
बॉयज एंड गर्ल्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, ट्रेनर्स, ट्रेनीज, तो वहां पे हैव टू आएगा. नाउ लेट मी ड्रॉ examples for you. Okay, as you can see, there is a sentence structure on the board. So by taking its help, I will draw sentences, or I will make sentences for you. Number one, I'll take one example of has to and another example of have to. Has to. You can say युगांश. क्या आएगा? युगांश एक नेम है तो हैज टू. युगांश हैज टू रीड his chapter to understand the concept well. क्या सेंटेंस हुआ? युगांश को अपना चैप्टर पढ़ना ही है कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए. अब आप जब तक रीडिंग नहीं करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा? उसको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. क्यों? लेकिन उससे पहले द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, प्राइमरली नीडेड थिंग इज रीडिंग. ठीक है, तो उसे रीड करना ही पड़ेगा या पढ़ना ही पड़ेगा, इसके लिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए. अब यहाँ पे मैंने हैज टू को यूज किया बिकॉज एक है, एक ही नाम है. ठीक है, युगांश से ज्यादा होता, एक युगांश और दिव्यांश होता तो हैव टू आर, मतलब एक नेम से ज्यादा नेम होता तो हैव टू आर. नाउ सेकंड सेंटेंस इज दे के साथ क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली हैव टू, एक से ज्यादा है. दे हैव टू, दे का मतलब क्या होता है? वे सब. तो वे सब एक से ज्यादा हुए तो हैव टू. दे हैव टू स्पीक पोलाइटली. ठीक है, दे हैव टू स्पीक पोलाइटली, उनको विनम्रता के साथ पोलाइटली बोलना पड़ेगा. नाउ दे क्या है? दे एक से ज्यादा है, वे सब, वे सब. दे हैव टू, उसके साथ दे हैव टू आ जाएगा, मोर देन वन आ जाएगा तो हैव टू आ जाएगा. सो हैव टू, दे हैव टू स्पीक पोलाइटली, उनको सॉफ्टली या पोलाइटली विनम्रता के साथ बोलना होगा. मतलब कि तमीज से, आराम से, लड़के रूडली नहीं बोलना. ठीक है, तो उनको बोलना ही होगा. ठीक है, सो दिस इज मीन्स समटाइम यू कैन लीव रीजन ऑल्सो. मतलब जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस में रीजन डाला है कि उनको ये काम करना ही होगा. क्यों? प्राइमरली द रीजन इज दिस. बट नेक्स्ट टाइम अगर आपने कोई सेंटेंस ऐसा भी ड्रॉ करना है कि आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, दैट्स इट, बात खत्म हो गई. बट अगर आप और ज्यादा बोलना चाहते हो तो आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ टू बी अ बेटर इंडिविजुअल और टू बी एन इंटरेस्टिंग और पर्सनैलिटी, और यू कैन से टू बी अ यूनिक पर्सनैलिटी. ठीक है, सो आप रीजन बता के भी बना सकते हो, फ्रेम सेंटेंसेस कर सकते हो. सेंटेंसेस को फ्रेम बिना रीजन के सिंपली ये भी बता सकते हो मुझे ये करना ही है. ठीक है, तो इसकी हिंदी क्या होती है? करना ही है, करना ही हो, करनी ही है और करने ही है. ठीक है, तो आप किसी भी सेंस में उसको ले सकते हो. ठीक है, आप करना ही है, करनी ही है, करनी ही है. मुझे पढ़ाई करनी ही है एक अच्छा इंसान, एक सफल इंसान बनने के लिए. आई हैव टू स्टडी हार्ड टू बी अ गुड पर्सन और सक्सेसफुल पर्सन. एंड करनी ही है, मुझे पढ़ाई करनी है, करना ही है, मुझे वर्कआउट करना ही है अपना वेट कम करने के लिए, और करने ही है, हमें बहुत सारे काम करने ही हैं फंक्शन को अच्छे से एग्जीक्यूट करवाने के लिए, मतलब कि अच्छे से वो चीज हो जाए. सो बेसिकली आई गेस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर एंड काइंडली डू a lot of practice, or at least bare minimum practice which you need to realize, make you realize that yes, you have understood the concept. If you really find this video
worthy for you, suitable for you into all shapes, that you find this video worthwhile, को लगे कि इसमें आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है, न्यू सीखने को मिला है. So please come to my channel, kindly share your blessings, or you can say appreciation, or your acknowledgement in the form of likes, share and subscribe. So I'll meet you in the next video with a new concept. Till then, take care, stay blessed and keep smiling. Bye bye.